Good morning, my dear student. Today we will continue class 11th history, chapter 6, the three order. In this chapter, today we will discuss about the fourth order, new towns and townspeople. But before start this topic, I would like to remind you that what we will read in our previous video, in our previous class. Dear student, if you will see my previous video, then you can find out there that we have discussed about the first order, second order, third order, and the social and economical relation between them. We have also discussed about knights, monks, friars, and the situation during 9 to 16 in European society. We will talk about that. I have already discussed the third order, that was exploiting group. They tried to improve their condition. In 13th, 14th century, gradually the situation, the condition has changed when the surplus production, when the economical system was developed, marketing center developed. So a new group emerged in society, that was fourth order. Today we will discuss on that fourth order. The fourth order, new towns and townspeople. Expansion in the agriculture was accompanied by growth in three related areas: population, trade, and towns. From the roughly 42 millions in 1000 Europe population stood at 62 millions around 1273 millions in 1300. Better food meant a longer lifespan. By the 13th century, an average the European could accept to live 10 years longer than in the 8th century. Women and girls had shorter lifespan compared to men because the latter ate better food. Expansion in agriculture was accompanied by growth in three related areas. खेती में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो विस्तार हुआ, उसके साथ ही उससे सब तीन क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट दिखाई देता है. Not only the agriculture area developed, but as well as other three sectors also improve their condition: population, trade, and towns. From roughly 42 millions in 1000, European population stood at 62 million around 200 and 73 millions 1300. Better food meant a longer lifespan. By the 13th century, an average European could expect to live 10 years longer than in the 8th century. Women and girls had shorter lifespan compared to men because the latter ate better food. जनसंख्या तेजी से बढ़ी यूरोप की, 1000 से लगभग 420 लाख से बढ़कर 1200 में 620 लाख हो गई और फिर 1300 तक आते आते 730 लाख के बराबर हो गई. बेहतर खाना का अर्थ था लंबी जीवन की अवधि. अगर अच्छा भोजन मिले तो लाइफ स्टाइल अपने आप, लाइफ स्पैन ऑलरेडी बढ़ जाती है. बाय द 13th सेंचुरी के आसपास, 13वीं सदी के आसपास, यूरोपीय 8वीं सदी की तुलना में 10 वर्ष अधिक जी सकता था पुरुषों की तुलना में.
महिला और स्त्री, फीमेल और गर्ल्स की जीवन अवधि छोटी होती थी, क्योंकि वो पुरुषों की अपेक्षा कम अच्छा खाना खाती थी, लेती थी. The towns of the Roman Empire had become deserted and ruined after its fall. But from the 11th century, as the agriculture increased and became able to sustain higher level of population, town began to grow again. Peasants who had surplus grain to sell need place where they could set up the selling center and where they could buy tools and class. This led to the growth of periods, the fairs and small marketing center which gradually developed town like features. Town square, a church, roads where merchants built shop and home and offices, where those who governed the town could meet in other places. Town grew around large castle, bishop, state और लार्ज चर्चेस. डेवलपमेंट का जो चीज़ दिखी हमें वो रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात, डिक्लाइन ऑफ द रोमन साम्राज्य, बहुत सारे नगर डिक्लाइन हो गए, उजाड़ हो गए. परंतु 11th सेंचुरी में जब डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में, एक्सपेंशन हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो अधिक जनसंख्या का भार सहने में वो सक्षम हो गए. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजन, फूड अवेलेबिलिटी इस सरप्लस प्रोडक्शन ने बढ़ा दिया. और फिर इसी के कारण नगर सिटी का डेवलपमेंट शुरू हो गया. सपोज द पीजेंट्स हु हैव सरप्लस प्रोडक्शन, क्या करेगा वो सरप्लस प्रोडक्शन का? खाने के अलावा वो इन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता महसूस हुई जहाँ पे ये अपनी चीज़ों को बेच सके. मार्केटिंग सेंटर, they felt that one place where we sell and purchase our goods, अपने चीज़ों को, सरप्लस ग्रेन को क्या करें? नीड टू प्लेस वेयर दे कुड सेट अप द सेलिंग सेंटर एंड वेयर दे कुड बाई टूल्स एंड क्लॉथ्स, जहाँ पे वो कपड़े खरीद सकें, उपकरण खरीद सकें. दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ द पीरियाडिक फेयर्स एंड स्मॉल मार्केटिंग सेंटर. और यही आवश्यकताओं ने एक मार्केट्स के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, एक मार्केट बनाया. मेलों का उत्सव, बाजारों का उत्सव को बढ़ावा दिया और छोटे छोटे जो मार्केटिंग सेंटर्स थे उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण रोल निभाए. अब यहीं पे छोटी छोटी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं. अ टाउन स्क्वायर, अ चर्च, रोड वेयर द मर्चेंट्स बिल्ड शॉप्स एंड homes and offices, where those who governed the town could meet in other place. Town grew around the large castle, bishop state. ये जो एक नगर चौक, जो चर्चेस थे, सड़क जहाँ पे व्यापारी घर और दुकानों का निर्माण कर सके और एक ऑफिस बना सके जहाँ से नगर पे उनका कंट्रोलिंग बनी रहे. साथ ही साथ नगर के विकास में बड़े दुर्ग, कैसल्स, बिशप की जागीर, स्टेट ऑफ द बिशप्स, और जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो बड़े चर्चों के चारों तरफ इनका विकास होने लगा. वी विल रीड अबाउट कैथेड्रल टाउन्स वेयर वी हैव डिस्कस अबाउट दैट कि कैथेड्रल टाउन्स के चारों तरफ किस तरीके से इन नगरों का विकास हुआ, धार्मिक केंद्र के चारों तरफ किस तरीके से शहर बने. इट मीन्स हियर ऑथर क्लियरली इन्फॉर्म दैट ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन द कॉमन पीपल, द पीजेंट, द बिग पीजेंट्स वांट द पर्टिकुलर प्लेस वेयर दे सेल देयर सरप्लस ग्रेन and purchase the clothes, tools and their necessary needs. So on that process they developed a center, marketing center. On that process they developed a town square. It was all established the particular region, particular area where the circumstances available like church, like grand path जहाँ उनकी दुकानें हों, ऑफिसेज हों,
एंड पर्टिकुलर प्लेस वेयर देयर ऑफिसेज टू कंट्रोल द होल सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे कंट्रोल कर सकें, और इस तरह की विकास वहाँ पे दिखाई देते हैं. इन टाउन्स इंस्टीट्यूट ऑफ सर्विस पीपुल पेड ए टैक्स टू द लॉर्ड्स who owned the land on which the town stood. Towns offered the prospect. Here you have seen a picture which is given in your book. You should observe this. And the French cathedral towns 17th century map. मैप की कैथेड्रल टाउन्स है, ये चर्च के चारों तरफ डेवलप एक सिटी है, इसके बारे में बात कर रहा है. अ पेड वर्क एंड फ्रीडम फ्रॉम द लॉर्ड्स कंट्रोल्ड फॉर यंग नीड्स फ्रॉम पीजेंट्स फैमिली. नगरों में लोग सेवा के स्थान पर उन लाडों को जिनकी भूमि पर नगर बसे थे कर देने लगे. नगरों ने जो पीजेंट्स फैमिली थी, जो जवान लोगों को वैतनिक कार्य और लाड के नियंत्रण से मुक्त होने की बहुत सारी संभावनाएं पैदा कर दी. इट मीन्स लार्ज कंट्रोल फॉर यंग पीपुल फ्रॉम पीजेंट्स फैमिली. किससे? लार्ड से वो लोग फ्री होने की उनको सुविधाएं मिली, और ये चीज़ें सोसाइटी को प्रमोट कर रही थी ऐसे फोर्थ ऑर्डर के डेवलपमेंट के लिए. टाउन्स एयर makes free was a popular saying. Many serfs carving to be free ran away and hide in town. It is serf could stay for 1 year and 1 day without his lord discovering him. He would become free from many people in town were free peasants or escaped serfs who provided the unskilled labor. Shopkeepers and merchants were the numerous later. Later there was need for the individuals with the specialized skills like bankers and lawyers. The bigger towns had populations of about 30,000. They could be said to have formed a fourth order. Here, author clearly categorize the people who were part of the fourth order. If you will see the particular persons, mostly in the fourth order, the serfs, the free peasants, lawyers, traders, artisans, इन्हीं से मिलकर फोर्थ ऑर्डर का निर्माण हुआ. बैंकर्स आल्सो, फोर्थ ऑर्डर इन्हीं से बना. धीरे धीरे फोर्थ ऑर्डर का विकास 30,000 तक पहुंचा. एक बड़े फोर्थ ऑर्डर एक टाउन्स में करीब करीब 30,000 की पॉपुलेशन स्थापित हो चुकी थी, बन चुकी थी. नगर की हवा स्वतंत्र बनाती थी. एक प्रसिद्ध कहावत यह थी, विच प्रूव्ड ऑन द फोर्थ ऑर्डर. मेनी सर्व्स, बहुत सारे जो कृषि दास थे, कार्विंग टू बी फ्री रैन अवे एंड हाइड इन टाउन्स. ये वो लोग थे जिन्होंने अपने को, ये सर्व्स जो अपने मालिक से अपने को छुपा लेते थे फोर्थ ऑर्डर में आके. यदि वो अपने को 101 दिन 101 डेज छुपाने में सफल हो जाते थे तो ऐसी स्थिति उन्हें फ्री कर देती थी. मेनी पीपुल्स ऑफ टाउन्स वर फ्री peasants or escaped serfs who provided unskilled labor, and these type of peoples, they become free. They provide unskilled labor in city or towns. Shopkeepers and merchants were numerous. Their number is a huge amount in city. Later, there was need for individuals with specialized skills. बाद में कुछ ऐसे लोगों की जरूरत पड़ी जिनके पास अपनी कुछ विशेष कौशल थी, अपनी कुछ विशेष कलाएं थी, like bankers and lawyers. The bigger towns had population
of about 30,000, they could be said to have formed a fourth order. इन्हीं से फोर्थ ऑर्डर का निर्माण हुआ. इट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से कि स्वतंत्र रहने की इच्छा रखने वाले जो दास थे, जो सर्व्स थे, वो अगर अपने को अपने मालिक से 101 डे छिपा लेते थे तो वो स्वतंत्र मान लिए जाते थे. और इस तरह के लोग से ही अधिक संख्या में जो नगर में रहने वाले लोग थे वो यही थे, या तो वो फ्री पीजेंट्स थे या तो वो सर्व्स थे. इनके अतिरिक्त बहुत सारे दुकानदार, शॉपकीपर्स और बहुत सारे लोग जो अपने नए कार्यप्रणाली के द्वारा जाने जाते थे. आवश्यकता के आधार पर जो नए नए काम, नए नए कार्यों की आवश्यकता पड़ी, उसके आधार पर उन्होंने अपने को ट्रेन किया, स्किल्ड किया, लाइक बैंकर्स, लाइक लॉयर्स. ये लोग भी इस फोर्थ ऑर्डर के मेंबर के रूप में मर्ज हुए. एंड वी हैव सीन कि द बिगर टाउन had population of about 30,000, they could be said to have formed a fourth order. धीरे धीरे नगरों की संख्या बढ़ने लगी. एक बड़े नगर में करीब 30,000 लोग से बनता था, 30,000 लोग रहते थे. ये कहा जा सकता है कि इनका समाज, इनकी सोसाइटी ने फोर्थ ऑर्डर नाम की संस्था क्रिएट कर ली, बना ली. आर्थिक संस्था का आधार गिल्ड्स था. प्रत्येक शिल्प या आर्ट एंड क्राफ्ट की एक अपनी श्रेणी होती थी. इस श्रेणियों के रूप में, गिल्ड्स के रूप में संगठित थे. यह एक ऐसी संस्था थी जो उत्पाद की गुणवत्ता और उनके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी. श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का आवश्यक अंग था. काउंसिल हॉल हर सिटी में, हर फोर्थ ऑर्डर की सिटी में निश्चित होता था, यहाँ पे सभी गिल्ड्स के जो मुखिया होते थे सब वहाँ जुड़ते थे, आपस में चर्चाएं करते थे. ये श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का एक महत्वपूर्ण अंग था. ये अनुष्ठानिक समारोह के लिए था, जहाँ गिल्ड के प्रधान औपचारिक रूप से मिला करते थे. गार्ड्स नगर के चारों ओर गश्त लगाते थे और शांति स्थापित करते थे. संगीतकारों को भी प्रीति भोज और नागरिक जुलूसों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता था. और जो इन कीपर्स थे वो बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों की देखभाल करते थे. ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन was a guild. Each craft industry was organized into a guild and association which controlled and quality of the product, its price and its sale. The guild's hall was of features of every town. It was a building for the ceremonial functions and where the heads of all the guilds meet formally. Guards patrolled the town walls and musicians were called to play at feasts and civic processions. And innkeepers looked after travelers. बाहर से जो लोग आते थे इनकीपर उनकी देखभाल करते थे. इट मीन्स पूरा फोर्थ ऑर्डर एक डेवलप्ड फॉर्म में, एक व्यवस्थित रूप में स्थापित हो चुका था. बाय द 11th century, the new trade route with West Asia were developing. 11th century में नए ट्रेडिंग रूट्स जो एशिया से डेवलप हो चुके थे. इफ यू विल रीड द चैप्टर 5 नोमैडिक एम्पायर वेयर वी हैव डिस्कस अबाउट द सिल्क रूट, दैट वाज द ट्रेड रूट व्हिच वाज डेवलप्ड इन द 11th century. द स्कैंडिनेवियन मर्चेंट्स वर सेलिंग साउथ फ्रॉम द नॉर्थ सी टू एक्सचेंज फर एंड हंटिंग आर्क्स ऑफ क्लॉथ. English traders came to sell tin in France by the 12th century. Commerce and craft began to grow. Earlier craftsmen used to travel from manor to manor. Now they found it easier to settle in one place where goods could be produced and trade for food. As the number of towns grew and trade continued to expand, town merchants became rich and powerful and rivaled the power of the nobility. The 11th century में सिल्क रूट के रूप में जो
ट्रेड रूट्स डेवलप हो चुका था, उसका इस्तेमाल ये नए व्यापारिक मार्ग के रूप में लोग करने लगे। इसके नेवियाई जो ट्रेडर्स थे वो इन कपड़ों के बदले, इसके नेवियाई मर्चेंट्स वर सेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ सी टू एक्सचेंज फर एंड हंटिंग आर्क्स फॉर क्लॉथ। कपड़ों के बदले वो एक्सचेंज करते थे, शिकारी बाज फर, जो उत्तरी सागर और दक्षिणी समुद्र के मार्ग से वो यात्रा करते वहां पहुंचते थे। ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश थे, इंग्लिश ट्रेडर्स थे, रांगा बेचने के लिए आते थे। 12वीं सदी 12th सेंचुरी तक फ्रांस के वाणिज्यिक और शिल्प विकसित होने लगे थे। क्राफ्टमैन यूज्ड टू ट्रेवल फ्रॉम मैनर टू मैनर। English traders came to sell tin in France by the 12th century. Commerce and craft began to grow. Earlier craftsmen used to travel from manor to manor. Now they found it easier to settle in one place, whether goods, cloud, produced and trade for food. ये सॉरी ओके, जो इंग्लिश ट्रेडर्स केम टू sell tin in France by the 12th century. The commerce and craft began to grow. Earlier craftsmen used to travel from manor to manor. Now they found it easier to settle in the one place where goods cloud be produced and traded for food. As the number of town grew and trade continued to expand, town merchants became rich and powerful and revived the power of the nobility. जो पहले जो व्यवस्था थी, इसमें जो लोग एक मैनर से दूसरे मैनर तक ये अपनी चीज़ों को बेचने के लिए जाने लगे, अपनी आजीविका चलाने के लिए, जहाँ वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके, जो उनके अकॉर्डिंग अच्छे प्लेस हो, वहाँ पे अब इन लोगों ने अपना बसाव शुरू किया। एंड हियर आई वांट टू टेल यू दैट the privileges attract the traders, that they reach particular fourth order place, I mean to the city and towns, and they settled himself. If their requirement is fulfilled in the particular area, they settled himself particular that region. ऐसे लोग जो बाहर के व्यापारी थे, यदि उन्हें रहने खाने की अच्छी व्यवस्था मिल जाती थी, अपने सामानों को व्यवस्थित करने की जगह मिल जाती थी, तो वो अपने को वहीं पे सेटल कर लेते थे। इस तरीके से भी फोर्थ ऑर्डर का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। नाउ सेकेंड पॉइंट्स, कैथेड्रल टाउन्स। वन ऑफ द वे दैट रिच मर्चेंट्स स्पेंड देयर मनी वाज बाय मेकिंग डोनेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द 12th century. Large church called cathedrals were being built in France. These belong to monasteries, but different group of people contributed to their constructions with their own labor, materials or money. Cathedrals were built of stone and took many years to complete. As they were being built, the area around the cathedrals became more populated, and when they were completed, they became the center of pilgrimage. Thus small towns developed around them. चर्च को जो डोनेशन मिलते थे, जो प्रॉस्परस ट्रेडर्स उनको डोनेशन देते थे, चर्च का खर्च उसी से चलता था। 12th सेंचुरी में फ्रांस में बड़े चर्चों को कैथीड्रल कहा जाने लगा। यद्यपि वे श्राइन्स की संपत्ति थे, श्राइन की प्रॉपर्टी थे, पर लोगों के विभिन्न समूहों ने धार्मिक भाव से कई सारे चर्चों का निर्माण किया। उन्होंने उसमें अपना श्रम, अपनी वस्तुएं
अपने वेल्थ, पैसे को डोनेट किया उसको बनाने में। कैथीड्रल के पत्थर, जो थे, बड़े चर्च जो थे, वो पत्थरों से बनते थे और उन्हें पूरा करने में अनेक वर्ष लगते थे, न्यूमरस वेरी लार्ज टाइम, मेनी ईयर्स टू कंप्लीट। अब उन्हें बनाया जा रहा था, तो कैथीड्रल के आसपास के क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोग आकर के रहने लगे, बस गए। काम करने के दौरान कुछ वर्कर्स वहाँ बस गए, कुछ ज़रूरत की चीज़ों को सप्लाई करने वाले लोग बस गए। इनमें धीरे धीरे कैथीड्रल टाउन के रूप में डेवलप हो गया। ये वही लोग थे जो कैथीड्रल में काम करते थे या कैथीड्रल की ज़रूरतों की चीज़ों की आपूर्ति करते थे, उनके डिमांड्स को फुलफिल करने वाले लोग थे। फिर एक प्रोसेस के थ्रू कैथीड्रल टाउन प्रॉपर डेवलप्ड बन गया। एक रिलीजियस सेंटर के रूप में कैथीड्रल टाउन डेवलप हुआ। रिलीजियस सेंटर इज आल्सो मार्केटिंग सेंटर, इट बिकम द मार्केट सेंटर ग्रेजुअली। कोई भी रिलीजियस सेंटर हो, धीरे धीरे वो मार्केटिंग सेंटर के रूप में डेवलप हो ही जाता है। अगर आप देखें तो कैथीड्रल इस प्रकार बनाए गए थे कि उनके आसपास छोटे छोटे नगर अपने आप विकसित हो जाए। कैथीड्रल में पादरी की आवाज़ लोगों को जमा करने वाले सभागार से साफ सुनाई पड़ सके, और जो मॉन्क्स थे जो गायन करते थे, अधिक मीठी आवाज़ दूर तक पहुंच सके। इसलिए कैथीड्रल सेंटर के सिटी के बीचों बीच होते थे। खिड़कियों के लिए कैथेड्रल में जो विंडो होती थी वो अभिरंजित कांच का प्रयोग होती थी, सुंदर ग्लास की बनी होती थी। कैथेड्रल वर डिजाइंड so that priest's voice could be heard clearly within the hall where a large number of people gathered, and so that the saying by monks could sound beautiful, and the chiming bells calling people to prayer could be heard over a great distance. Stained glass was used for window. During the day, the sunlight would make them radiant. For peoples inside the cathedrals, and after sunset, the light of candle would make them visible to people outside. The stained glass window narrated the stories in the Bible through the picture, which illiterate people could read. ये जो ग्लास लगे थे, स्टेन ग्लास, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। ये चर्च की खिड़कियों की दीवार, खिड़कियों के जो पार्ट बने थे उसमें ये ग्लास काफ़ी खूबसूरती से लगाए जाते थे। दिन के वक्त सूरज की रोशनी इस कैथेड्रल के अंदर व्यक्तियों के लिए चमकदार बना देती थी, और सनसेट के टाइम मोमबत्तियों की रोशनी इन्हें बाहर के व्यक्तियों के लिए दृश्यमान बनाती थी। इट मीन्स विंडो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर लाइटिंग। एक प्रॉपर जगह, प्रॉपर तरीके से इन विंडो को सेटल किया गया था, बनाया गया था। बाइबल की कथाओं का वर्णन जिन्हें पढ़ने वाले व्यक्ति पढ़ ले, लेकिन कुछ ऐसे पेंटिंग्स थे, कुछ ऐसे चित्र थे जिनको बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति भी बाइबल की कहानियों को समझ सकता था, देख सकता था। इस तरीके की व्यवस्था भी चर्च के अंदर की गई। बाइबल थ्रू पिक्चर्स विच इलिटरेट पीपल कुड रीड। बाइबल के चित्रों के माध्यम से अनपढ़ व्यक्तियों के लिए भी धर्म को समझने की व्यवस्था कैथेड्रल में की गई थी। इट मीन्स इन द कैथेड्रल टाउन, इन द कैथेड्रल, इट मीन्स द कैथेड्रल attracted the various people to develop the cathedral towns। क्योंकि कैथेड्रल को बनने में काफ़ी लंबा टाइम लगता था, बहुत सारे लोग लगते थे, उनके सामानों की आपूर्ति के लिए बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती थी, इसलिए कैथेड्रल धीरे धीरे कैथेड्रल टाउन्स के रूप में डेवलप हो गया।
कैथेड्रल इस तरीके से बनते थे कि नगर के दूर दराज, नगर के दूर तक के क्षेत्रों तक पृष्ठ की आवाज़ और चर्च की घंटियाँ सुनाई दें। कैथेड्रल में लगी हुई जंगले की जो खिड़कियाँ थीं, जो शीशे थे, वो बेहद ही खूबसूरत थे। दिन में सूर्य का प्रकाश अंदर आता था और रात में मोमबत्ती की लाइट्स बाहर जाती थी, जो लोगों को डिविनिटी का एहसास कराती थी। धीरे धीरे इन चर्च का विकास हुआ। चर्च के अंदर पेंटिंग्स लगने लगे। चर्च के अंदर उन पेंटिंग को बनाया जाने लगा जिसे इलिटरेट लोग भी पढ़ सकें, समझ सकें बाइबल को। और इस तरह से कैथेड्रल टाउन्स यूरोपियन सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस के रूप में डेवलप हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, आई थिंक द क्राइसिस ऑफ द 14th century. My dear student, in this topic, crisis of the 14th century, we will discuss कि किस तरीके से यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया और धीमा पड़ने की वजह क्या थी, किन कारणों से धीमा पड़ा, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। By the early 14th century, the European economic expansion slowed down. This was due to 3 factors. What were the factors? Because of the European economy expansion slowed down. क्या रीजन्स थे? इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट माय डियर, हियर आई इन्फॉर्म यू दैट the fourth order very important for your exam. You have to read, you have to learn this. And fourth order, that was revolutionary change in the society, in the European society. You have seen in the fourth order, the member of fourth order, mostly those, they were free peasants, they were serfs, or according to needs, some group emerged in the fourth order, like bankers, like money lenders, and like lawyers. Numerous shopkeepers, numerous artisans, craftsmen, they are also part of the fourth order. इस तरीके से फोर्थ ऑर्डर करने वाला। Then after we have read the cathedral towns, cathedrals, the big church in France called cathedral, and in the making process of cathedral, there are huge amount of the people involved. They provide their services as labor, as a donation, as a other way. Gradually they settled along with church. They established their houses, अपनी घर बना करके वो धीरे धीरे चर्च के चारों तरफ जो पॉपुलेशंस की डेंसिटी बढ़ने लगी और फिर चर्च एक कैथेड्रल टाउन के रूप में डेवलप हो गया। चर्च की कुछ अपनी विशेषताएं बताई। चर्च बड़े होते थे, पत्थर से बनते थे, काफ़ी लंबे समय लगते थे और उसमें जो खिड़कियाँ होती थी वो डिविनिटी को दिखाती थी। शाम को कैंडल लाइट्स और डे में सन लाइट्स का दृश्य बड़ा सुनहरा होता था। चर्च की घंटियाँ दूर तक सुनाई दें और चर्च के पादरी जब बोले तो जो लोग उस चर्च हॉल में, चर्च की गैलरी में इकट्ठा हों, उन तक पूरी आवाज़ जाए, इसकी पूरी व्यवस्था कैथेड्रल टाउन के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग की गई थी। इन चीज़ों को हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द क्राइसिस ऑफ द 14th century. ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।